स्वागत और अभिवादन करते हैं और आपसे विनती करते हैं सबसे पहले आप अपने कर कमरों से यहाँ पर नेम प्लेट अनवीलिंग अपने कर कमरों से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, गुजरात सरकार के माननीय कानून मंत्री श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी और सभी गणमान्य व्यक्ति माननीय सांसद डॉक्टर भारती सियाल, जोरदार तालियां हो जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सरकार के सम्मानीय केंद्रीय मंत्री की नई कोर्ट बिल्डिंग की भूमि पूजन के अवसर पर पट्टी का अनावरण आपके माननीय मेयर कीर्तिबेन दानीधरिया, ऑनरेबल एमएलए विवारीबेन दवे, आप सबको विनती है मंच पर आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। दानीधरिया, ऑनरेबल एमएलए विवारीबेन दवे, रंगालिया, आप सबसे विनती है अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। हमारे भावनगर जिला पंचायत के माननीय प्रमुख श्री भरत सिंह जी, उपस्थित है ऑनरेबल मिनिस्टर सर, उनका स्वागत करते हैं। साथ ही मैं विनती करता हूं गुजरात बार काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर एएच झाला साहब को, आप भी अपने कर कमरों से आज की इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर का अपने कर कमरों से बुके से अभिवादन करें। जोरदार तालियों से हम माननीय मंत्री श्री का इस अभिवादन हो रहा है, इनको जोरदार तालियां। थैंक यू, अभिवादन करें। मैं विनती करता हूं ऑनरेबल एमआर जोशी सर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर, आप अपने कर कमरों से हमारे बीच पंचायत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री भरत सिंह गोयल साहब का अभिवादन करें। कमिश्नर श्री उपाध्याय सर, उनका स्वागत करने के लिए फिर से एक बार विनती करता हूं त्रिवेदी साहब को, आप अपने कर कमरों से श्री एसएच त्रिवेदी जी अपने कर कमरों से हमारे जोरदार तालियां। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित who happened to be one time our additional joint district and session judge at Bhavnagar, Honorable District and Session Judge Sri Bhavnagar Sri Gidjala Sahib, Chairman Bar Council of Gujarat, and my colleague Sri Anirudh Sri Bhala Sahib, Collector Bhavnagar, Additional President of all the three Bar Association, Honorable Convener of Gujarat, Sri J.J. Patel Sahib, who happened to be former Vice Chairman of Bar Council of Gujarat, Convener Legal Cell Gujarat, who has always cared and worried for the interest of not only the advocates of Bhavnagar, but of all the advocates all over the state of Gujarat. And very much friendly to us, like brothers to us. Honorable President Bhavnagar BJP Sri Rajesh Pandya, Mayor Sri and our colleague Advocate कीर्तिबेन दानीधरिया, chariot of the search for the land of the new court building premises started before many years. પ્રશ્ન એવો કે જે નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગ માટે થઈને બધા વકીલો અને ભાવનગરની જનતા ઈચ્છતી હતી કે એક સારું નવું બિલ્ડિંગ બને, પરંતુ અત્યારે ભારતમાં સરકાર જે ચાલી રહી છે બહુ સેન્સિટિવ સરકાર છે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી તેમજ ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારને सारे गुजरात और सारा इंडिया ने एक गली અને ખૂણાને ખાંચલાની અંદર ખ્યાલ છે કે કોની શું વેદના છે અને ક્યારે કનો નિકાલ કરવો પડે, परंतु समय से पहले तो भाग्य से कुछ नहीं मिलता। ऐसे आज समय आ गया है भावनगर में नवी कोर्ट का बिल्डिंग का उद्घाटन करने में, उसमें भी रिजू जी के साथ कमल कमल हंसते से आगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यही बिल्डिंग का नाम रहेगा। महाराजा कृष्ण कुमार जी भावनगर की जनता માટે ન્યાય મંદિર આપેલું 127 વર્ષ પુરાણું હેરિટેજ અહીંયા આજે દેસાઈ સાહેબ પણ પધાર્યા છે, હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલ છે, એવો પણ આપણા પ્રશ્નથી વાકેફ છે અને અમે રજૂઆત કરી
નામદાર હાઈકોર્ટને પણ ખ્યાલ હતો કે સારા ગુજરાતની અંદર ઇન્ડિયાની અંદર નવી કોર્ટની બિલ્ડિંગો થઈ ગઈ છે અને ભાવનગરને આપવાની છે એમને ખ્યાલમાં જ હતું, પરંતુ જગ્યાનો અભાવ હતો. હું આભાર માનીશ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ મંડવીયા સાહેબનો, કારણ કે ઓલરેડી આ જમીન અગાઉ એલોટ થઈ ગયેલી હતી અને મનસુખભાઈ મંડવીયા સાહેબને મેં કીધું કે ઘણા વર્ષો સુધી અહીંયા ભાવનગર બારના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે સેવા બજાવી, ત્યારે આ એક જગ્યા આપણે અનુકૂળ આવી અને મનસુખભાઈને મેં ફોન કર્યો કે સાહેબ આ જગ્યા અનુકૂળ છે બધાને માટે અને આપ આપો. એક જાતે કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વિના ભારત સરકારના આદેશથી ગુજરાત સરકારે આજે આ જમીન આપને આપી છે અને આજે અહીંયા એક ત્રિકમનો ટોચો જ્યારે લાગ્યો છે ત્યારે હું આપ સર્વેને વિનંતી કરું છું કે જ્યારે આ બિલ્ડિંગ બની જાય ત્યારે આ બિલ્ડિંગ મારી તમારી અને આપણા સર્વેની છે, એને જાળવવાની છે, નિભાવવાની છે અને આપણા 50 વર્ષો સુધી આ બિલ્ડિંગ અડીખમ રહે. હું તો પ્રાર્થના કરું કે આ બિલ્ડિંગમાં ભાવનગરની કોઈ જનતાને આવવાની જરૂર ના પડે એવી ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના કરું છું, કારણ કે આજે આ બિલ્ડિંગની અંદર ન્યાય મેળવવા માટે પૃથ્વી ઉપર બે મંદિર છે, એક ભગવાનનું મંદિર અને એક ન્યાય મંદિર. ભગવાનની પાસે આપણે રોજ ઉઠીને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ ન્યાયાધીશ સાહેબો જ્યારે ભગવાન તરીકે બિરાજમાન હોય છે, અસીલો જ્યારે એક દર્શનાર્થી હોય છે અને વકીલો અમે પૂજારી છીએ, પૂજારી પવિત્ર હોવો જોઈએ અને ન્યાય અપાવવાનું કામ કરીએ છીએ. આજે આ બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે ત્યારે આપ સર્વે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત થયા છો ત્યારે આપ સર્વેનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને ગુજરાત રાજ્યની અંદર 1 લાખને દેવડાવવા માંગુ છું કે આજના જ દિવસે 7 તારીખે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે શપથ લીધા હતા. એને 21 વર્ષ થયા અને એટલે આ દિવસ યાદ રહેશે ભાવનગર ખાતેથી. ભાવનગર માટેનો આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે પણ ખૂબ પ્રેમ હતો, આપણે બધા જાણીએ છીએ. આજના આ કાર્યક્રમમાં આદરણીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજુજી ના વરદ હસ્તે ભાવનગરના આ કોર્ટ બિલ્ડિંગનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે. એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ શ્રી LS પીરજાદાજી, માનનીય A ઝાલા ચેરમેન શ્રી, માનનીય પ્રેસિડેન્ટ ક્રિમિનલ બાર DM ડાભીજી, માનનીય MR જોશીજી, માનનીય SS ત્રિવેદીજી, માનનીય MD ત્રિવેદીજી, RM રાવલજી, પાર્લામેન્ટ મેમ્બર આપણા માનનીય ભારતીબેન, મેયર શ્રી કીર્તિબેન, લીગલ સેલના પ્રમુખ શ્રી JJ પટેલ, તમામ મહાનુભાવો, મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવો અને આપ સામે બેઠેલા સૌ મહાનુભાવો, જેમ ઝાલાજીએ કીધું કે બધા જ નામો લઈશું તો ઘણું લાંબુ લિસ્ટ છે. યસ કામ કોઈ કરતું હોય છે, યસ કોઈના હાથમાં જતો હોય છે. વર્ષોથી તમારી મહેનત છે, વકીલોની મહેનત છે, જજીસ જેટલા પણ આવીને ગયા એમની પણ મહેનત છે, પણ એનો યશ પીરદાદાજીને અત્યારે મળી રહ્યો છે. મહાનગરના કમિશનર શ્રી ઉપાધ્યાયજી છે, જેમણે પણ આમાં ખૂબ મદદ કરી છે. ત્યારે ગુજરાત સરકારના મંત્રી તરીકે 2003 ને 2004માં માત્ર બજેટ આખા ગુજરાત રાજ્યનું ન્યાયતંત્ર માટેનું 140 કરોડ રૂપિયા હતું, પરંતુ આજે 1740 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ગુજરાત સરકારે ન્યાયતંત્ર માટે ફાળવ્યું છે. આજના દિવસે એક વાતની હું નોંધ લેવડાવવા માંગુ છું કે ન્યાયતંત્રની અંદર જે ન્યાયાધીશોએ કોવિડ દરમિયાન પણ કામ કર્યું છે, કોર્ટના કર્મચારી અધિકારીઓએ પણ કામ કર્યું છે, એ તમામને વંદન અને તાળી પાડી તો જોરથી પાડવી. મિત્રો, એ દિવસોમાં જે ન્યાયાધીશ મિત્રોને પણ ક્ષતિ પહોંચી છે, ન પૂરાય એવી પણ ક્ષતિ પહોંચી છે, એ બધાને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને હું મારી વાત કહેવા માંગુ છું. અને ગુજરાત સરકારે એવા ન્યાયાધીશ જે ન રહ્યા આપણી વચ્ચે કોવિડના કારણે, એમને પણ 25 લાખ રૂપિયાની સહાય
નો નિર્ણય કરેલો છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. આજે ન્યાયતંત્રની માળખાકીય સુવિધા માટે નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગના બાંધકામ માટે કુલ્લે 683 કરોડ રૂપિયા ગુજરાત માટે ફાળવ્યા. ભાવનગરની કોર્ટ માટે વિશેષ કરીને 59 કરોડ રૂપિયા આ કોર્ટ બિલ્ડિંગ માટે જે ફાળવ્યા છે. થરાદ હોય, બનાસકાંઠા, ઉમરાળા, ભાવનગર, ટંકારા, મોરબી, ગોધરા, પંચમહાલ, કલોલ, ઉચ્છલ, તાપી, કડાણા, મહીસાગર, ઝાલોદ, દાહોદ, ભાયાવદર, અનેક જગ્યાએ જ્યાં બિલ્ડિંગ જૂના થયા છે. પણ એક વાતની નોંધ આપણે લેવી પડે કે આપણા કૃષ્ણકુમાર રાજવીજીએ 127 વર્ષ પહેલા બાંધેલું બિલ્ડિંગ આજે અડીખમ છે ને 5 વર્ષ હજુ ચાલે એમ છે. મિત્રો, મીડિયાના મિત્રોનો એટલા માટે પણ આભાર માનવો પડે કે એમના માધ્યમથી આપણે તમામ લોકો ની સમક્ષ પહોંચતા હોઈએ છીએ. એ આંખ બંધ કરી દે તો ઘણી બધી સારી વાતો પણ પહોંચી શકતી નથી હોતી. મિત્રો, આજે ભાવનગરનો જે ભવ્ય ઇતિહાસ છે, મને આજે સવારે યાદ દેવડાવ્યું કે ઘોઘાનો વર અને લંકાની લાડી આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો ભાવનગરનો વ્યક્તિ ક્યાં ને ક્યાંય પહોંચી શકે જગતમાં એવી ક્ષમતા ધરાવે છે. અને અમારા ઝાલાજી બાર કાઉન્સિલના ચેરમેન ગુજરાતના બન્યા છે. અને એમાં સિંહ ફાળો પ્રદેશ કન્વીનર જે પટેલનો અને આ પણ સૌનો છે કે તમે ચૂંટીને મોકલો છો ત્યારે અમારા કન્વીનર એમને ચેરમેન બનાવે છે. અને દમદાર છે, ચેરમેન પણ દમદાર છે. પાછા વાત દાદાગીરીથી મૂકે મારી પાસે. મને કે અમારા વકીલોના સહાય માટે તમે શું આપો છો? તમે તો પોતે વકીલ રહ્યા છો, 44 વર્ષથી વકીલ છો. અને 6 કરોડ રૂપિયા તાત્કાલિક આપણે બાર કાઉન્સિલને ફાળવી દીધા. મિત્રો, આજે આ નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગનો જે બાંધવાનો આપણે વિચાર કર્યો છે એમાં 25 કોર્ટ રૂમ બાંધવાના છે કુલ્લે. પણ આજે જ સવારે તાળી પાડો, જોરથી પાડો ભાઈ, 25 કોર્ટ બંધાવવાની હોય અને એની ચર્ચા આજે સવારે મારા વકીલ મિત્રો સાથે થતી હોય. 8-8:30 વાગ્યાના 50 વકીલ મિત્રો ત્યાં આવી ગયેલા સર્કિટ હાઉસમાં. અને અમે બધાએ મંત્રણા કરી, ચર્ચા કરી, એન્જિનિયરને બોલાવ્યો. કોર્ટ જે થવાની છે અહીંયા એના નકશા શું છે એ જોયા. અને મારો અનુભવ જે છે એ મેં શેર કર્યો બધા મિત્રો સાથે કે વકીલ મિત્રો જેટલી કાળજી લેશે એટલી કોર્ટ સારી બનશે. નામ નથી આપતો પણ ક્યાંક એવું બન્યું છે કે એક ભવ્ય કોર્ટ બની 130 કરોડના ખર્ચે. સદભાગ્યે કોર્ટ બંધાઈ ગઈ. મને ઇન્ટ્યુઝન થયું કે હું કોર્ટ જોવા જઉં. ઘણા વર્ષોથી ગયો નથી, હું ગયો. તમને આશ્ચર્ય થશે કે જજ સાહેબ જ્યાં જે ખુરશી પર બેસે ત્યાંથી કોઈ વકીલ દેખાય નહીં એવી સ્થિતિ. કોર્ટનું જે ફર્નિચર હતું એ પ્રકારે બનેલું હતું. અને વિટનેસ જ્યાં ઉભો રહે એ વિટનેસ જજથી પણ ઊંચે હાઈટ પર જાય એવા. એટલે જજે પણ આમ કરી જોવાનું. એક્યુઝ ડોકની અંદર જે આરોપી બેસે એમાં આવડો મોટો પટ્ટો ઉપર લગાડેલો એટલે કોઈ પણ હાઈટનો માણસ 5, 5.5, 6 ફૂટનો માણસ એનું મોઢું આખું ડંકાઈ જાય બેઠા પછી. આરોપી દેખાય જ નહીં એવી સ્થિતિ. એ ધ્યાન દોર્યું, જ્યુડિશિયરીનું ધ્યાન દોર્યું, ડિસ્ટ્રિક્ટ જજનું ધ્યાન દોર્યું કે તરત જ હાઈકોર્ટમાં એ વાત રજૂ થઈ અને આખો સુધારો આવ્યો. પણ એક જ કોર્ટ રૂમ તે વખતે બનેલી હતી એટલે સુધારો થઈ શક્યો. મિત્રોએ કાળજી લેવાની રહેશે. આપણે અસીલોની કાળજી લઈએ છીએ, આપણે જજ સાહેબને એટલું જ રિસ્પેક્ટ આપીને કાળજી લઈએ છીએ. પરંતુ સાથે સાથે જ્યારે નવું બિલ્ડિંગ કોર્ટનું બનતું હોય ત્યારે દરેક વાતનું ધ્યાન રાખવાની ફરજ જે હોદ્દેદારો છે બાર એસોસિએશનના એમની, બાર કાઉન્સિલના મેમ્બરની અને આપ સૌની છે. એ મારી વિનંતી છે કે આપ એમાં કાળજી લેશો જ. મિત્રો, સવારની ચર્ચામાંથી એક વાત ઉદ્ભવી છે અને હું વકીલ છું, મારી ફરજ છે તમારા પ્રત્યેની પહેલી. કારણ કે હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં જ્યારે પણ વાત નીકળે છે હું મારા જીવનમાં સફળ થયો હોઉં અન્ય રીતે પણ તો એમાં મારા વકીલાતનો મોટો ફાળો છે, મારા વકીલ મિત્રોનો મોટો ફાળો છે.
આજે જ મેં કીધું કે ભવિષ્યમાં તમારે 2 માળ બાંધી શકાય, 3 માળ બાંધી શકાય એવી જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે પાયો મજબૂત હોવો જોઈએ. આજે જ એની રજૂઆત કરો તમે, અને પાયાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે કંઈ હોય, એના સળિયા નાખવાના હોય, એના બાંધવાના હોય, એ એન્જિનિયર પાસે સુધરાવીને કરાવડાવજો. પણ એની રજૂઆત હવેથી શરૂ થવી જોઈએ, જેથી ભવિષ્યની માંગને પહોંચી વળાય. અને આ બિલ્ડિંગ બન્યા પછી 25-50 વર્ષ આપણે જાણીએ છીએ કે શક્યતા ઓછી હોય છે. એટલે 6 માળનું આ બનશે. એમાં ઘણીવાર એવું પણ બનતું હોય છે કે કોર્ટ રૂમની અંદર એક કોર્ટમાંથી બીજી કોર્ટમાં જવા માટેની સુગમતા અને સગવડતા જોવાવી જોઈએ. એટલે એ નકશા અંગે બેસીને બૃહદ ચર્ચા થવી જોઈએ. અને હું આશા રાખું છું કે માન્ય ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ શ્રી એવી સવલત તમને આપશે કે ચર્ચા બેસીને કરે આ બાબતમાં, જેથી કરીને ગુજરાતનું શ્રેષ્ઠ બિલ્ડિંગ એ ભાવનગરની કોર્ટ જોવા માટે બધા અહીંયા આવે. આ થવું જોઈએ. એમાં લેડીઝ બાર રૂમ છે, જેન્ટ્સ બાર રૂમ છે, બાર લાઇબ્રેરી છે, જજીસ લાઇબ્રેરી છે, કોન્ફરન્સ રૂમ, કેન્ટીન તો હોય જ, સ્ટોર રૂમ, રેકર્ડ રૂમ, રજિસ્ટ્રાર, એડમિન બ્રાન્ચ, પાર્કિંગ શેડ, ગાર્ડન, આ બધું જ છે. અને એમાં મારે વકીલ મિત્રે મને આજે એવું કીધું કે અમે કંઈ ટેબલ ટેનિસ રમી શકીએ એવું કંઈક હોય તો. મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે આ તો નહીં હોય અને ન જ હોવું જોઈએ. અમે એવું કેટલીક જગ્યાએ જોયું છે કે જો બાર રૂમ વધારે એવા વકીલો માટે હોય ત્યાં તો કેસ લડવા જવાનું છે, આપણે કેસ ચલાવવા જવાનું છે, કાયદો શીખવા જવાનું છે, કાયદો જાણવા જવાનું છે અને કાયદો જતાવવા જવાનું છે ત્યાં. અને ત્યાં આ બધી સુવિધાની અપેક્ષા રાખવી નહીં જોઈએ. નમ્રતાપૂર્વક મારી વાતને મૂકું છું. આ સરકારે તમામ અદાલતોની અંદર જજીસના રહેઠાણ માટેની તમામ સુવિધાઓ કરી છે અને એમાં સરકારે મોટું ફંડ ફાળવ્યું છે. અને મિત્રો ઘણી બધી કોર્ટો બની રહી છે, ઘણા બધાના ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં એનો અમલ પણ થઈ જશે. ન્યાયતંત્ર સમક્ષ પેન્ડન્સી, કેસોની પેન્ડન્સી એક ભયંકર મોટો પડકાર છે અને એ પડકારમાં આપણે મદદ કરી શકીએ એમ છે વકીલ તરીકે. હું એક વકીલ તરીકે વાત કરું છું. હમણાં તો એવી શુભેચ્છા આપી ઝાલા સાહેબે કે કોઈને અહીં કોર્ટમાં ના આવવું પડે એવું થાય એવી એમને તો માંગણી કરી માતાજી પાસે. એવું ના કરશો, અમારા વકીલોનું હિત જોજો. પણ તેમ છતાં કેસોની પેન્ડન્સી વખતે આપણે કમાવાનો ધ્યેય રાખવાને બદલે અથવા તો એ સિવાય એક એવો પણ ધ્યેય હોવો જોઈએ કે કેસ જલ્દીથી કેવી રીતે નિપટે. જો સમાધાનની શક્યતા હોય તો આ સમાધાન પણ કરવું જોઈએ. અને વકીલ હોવાના કારણે મને એક બીજો વિચાર આવ્યો કે લો એન્ડ જસ્ટિસના મંત્રી તરીકે હું નવું શું કરી શકું. તો આપણે ખૂબ એક સહજ વાત મૂકી છે અને સમગ્ર ગુજરાતના તમામ તાલુકામાં, તમામ જિલ્લા મથકે સમજાવટનું સરનામું આપણે શરૂ કર્યું છે અને એને થીમ આપી છે આપણે કે ફેમિલી ફર્સ્ટ. તો જ્યાં આગળ ફેમિલીના પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને કોર્ટમાં આવ્યા વગર કેવી રીતે સુલઝાવી શકાય, કારણ કે સામાજિક પ્રશ્ન છે, આ અદાલતી પ્રશ્ન ન હોઈ શકે. અદાલતની અંદર વર્ષો લંબાઈ જાય, કુટુંબ ભેગા થવાને બદલે વેરવિખેર થઈ જાય. એટલે આ એક નવો પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે. દરેક તાલુકા જિલ્લાની અંદર એમાં વકીલો હોય, બહેનો હોય, એમાં વિસ્તારના આગેવાન હોય અને એની આખી કમિટી જે બને એને ઓનોરિયમ પણ મળે 8,000 સુધીનું, એવી આખી વ્યવસ્થા કરી છે. કલેક્ટર આની કમિટી બનાવી રહ્યા છે. તાલુકા મથે મામલતદાર એ બનાવશે એ કમિટી. તો એની અંદર પણ આપણે રસ લેવા જેવો છે. આદરણીય ચીફ જસ્ટિસ ઓનરેબલ અરવિંદ કુમારજીએ પણ એક સુંદર વિષય આપ્યો. હાઈકોર્ટની પાસે જસ્ટિસ ક્લોક તો છે કે જ્યાં આગળ કેટલા કેસોનો નિકાલ થયો અને કેટલા પેન્ડિંગ છે એની વિગતો આવે છે. પણ એ ઉપરાંત એમણે એક સરસ વાત મૂકી કે ભિક્ષા નહીં શિક્ષા. અને 20 બસ અમદાવાદ મહાનગરે વસાવી બાળકો જે ભિક્ષા માંગે છે 4 રસ્તા ઉપર એમને શિક્ષણ આપવું અને શિક્ષણ આપવાનું કામ એ એમને જે માર્ગદર્શન આપ્યું ચીફ જસ્ટિસે, તો એ રસ લઈ રહ્યા છે સમાજની અંદર પણ. તો ન્યાયતંત્રની અંદર જજ પણ જો રસ લેતા હોય સમાજ માટે તો વકીલોએ વધારે રસ લેવાની જરૂર છે. અને આઝાદીના વખતે પણ વકીલો જ અગ્રીમ હરોળમાં હતા અને એમણે સૌથી મોટો ભોગ પણ વકીલોએ આપેલો છે.
મિત્રો આજે એમાં પણ આપણે કંઈક ને કંઈક સમજાવટના સરનામામાં પણ આ જ રીતે મદદ કરીએ. મારી વિનંતી છે કે કેસો ઘણીવાર ખૂબ લાંબા ખેંચાય છે. એનું કારણ, એના ઘણા બધા કારણો છે. એ કારણોમાં ઉતરતો નથી. એમાં ક્યાંક ક્યાંક વકીલો, આપણે વકીલ તરીકે આપણે આપણી જાતને પણ જોવી જોઈએ, વિચારવી જોઈએ. અને સારા વકીલ હશે તો જ સાચો ન્યાય મળશે. જેટલી વકીલ વધારે મહેનત કરતો હશે તો ન્યાય અપાવવામાં મદદરૂપ થશે. જજને આપણે ગાઈડ કરવાના છે. જજીસને કોઈ કેસ સાથે સંબંધ હોતો નથી. બંને પક્ષ એના માટે તટસ્થ છે, સમાન છે. તેવા વખતે આપણી જ મહેનત રંગ લાવતી હોય છે. તમામ વકીલ મિત્રો જે અહીં આવ્યા છે, તમામ બીજા નાગરિકો પણ ભાઈઓ બહેનો જે આવ્યા છે, હું તમામને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું આજના પ્રસંગે. અને એક ખાતરી આપું છું, કારણ કે તમારા બહારના ત્રણેય પ્રમુખોએ મને વિનંતી કરી છે કે ક્યારેક તમે, હવે ઇલેક્શન નજીક છે, માથે છે, તો જ્યારે તમે ફરી જાન્યુઆરી પછી જ્યારે આવો ત્યારે વકીલો માટેનું એક સેશન રાખીશું. આખા દિવસનો એક કાર્યક્રમ રાખીશું અને ઘણા બધા વિષયો પર ચર્ચા કરીશું કે જેથી આપણા ન્યાયને માટે એક મજબૂત વકીલો ઊભા થાય અને ન્યાયની બાબતમાં જજીસને પણ આપણે ધ્યાન દોરી શકીએ. કારણ કે જજીસ પણ આપણામાંથી જ આવતા હોય છે. સમાજ માટે સત્કાર્ય કરતા રહીશું. ધન્યવાદ. આજે કિરણ રિજિજુજી જે આવ્યા છે આપણી પાસે, ઘણી મોટી આશા લઈને આવ્યા છે. पधारे हुए गुजरात के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर राजेंद्र त्रिवादी जी, यहाँ भावनगर के मेयर कीर्तिबेन धोनीदरिया जी, मेरे साथी लोकसभा के एमपी भारतीबेन सियाल जी, भावनगर के विधायक भिवारीबेन दावे जी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट भरत सिंह गोयल जी, गुजरात के लॉ सेक्रेटरी PM रावल जी, मेरे मंत्रालय से अधिकारी यहाँ आए, जॉइंट सेक्रेटरी GR राघवेंद्र जी, गुजरात हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार RK देसाई साहब, भावनगर के डिस्ट्रिक्ट जज LS पीरजादा जी, बार काउंसिल ऑफ गुजरात के चेयरमैन AH झाला जी, बार काउंसिल ऑफ भावनगर के प्रेसिडेंट SS त्रिवेदी जी, क्रिमिनल बार एसोसिएशन भावनगर के प्रेसिडेंट DM धाबी जी, MACT बार एसोसिएशन भावनगर के प्रेसिडेंट MD त्रिवेदी जी, स्टेट BJP सेल के कन्वेनर JJ पटेल जी, गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लीडर भावनगर के MR जोशी जी, और भावनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बर्ते साहब, और यहाँ तमाम हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉयर्स, राज्य सरकार के डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के ऑफिसर्स और मीडिया के बंधुओं, मुझे जितना कहना था, मुझे गुजराती तो पूरा समझ में नहीं आता है, लेकिन इशारा से और एक्शन से मुझे समझ में आ रहा था कि जो मुझे कहना चाहिए लगभग कह चुके हैं. शुरू में जो हमारे जज साहब वेलकम एड्रेस किया तो मैंने पूछा वो माइक ख़राब है क्या, क्योंकि जज साहब थोड़ा धीरे धीरे बोलता है. तो मंत्री जी और हमारा MP साहिबा ने बोला कि जज लोग धीरे धीरे बोलने का आदत है, अभी वकील आएगा वो जोर जोर से बोलेगा. तो उसके बाद हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन बड़ा अच्छा से जोशीला भाषण दिया. फिर बाद में बहुत बैलेंस करके हमारे मंत्री जी ने, राजेंद्र भाई ने आपको सब कुछ बता दिया. मुझे तो सिर्फ इतना ही है कि इस खुशी के शुभ अवसर पर आपके बीच में आना, यही मेरा एक सुखद अनुभव है. मैं पहली बार आया हूँ भावनगर, वैसे तो बहुत बार सुन चुका हूँ और गुजरात में बहुत बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन किसी ना किसी कारण से भावनगर में आने का पहले मौका नहीं मिला था. तो आज अहमदाबाद से हम लोग गाड़ी में आए तो रास्ते में देख करके आया, रास्ता भी अच्छा है और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुँच गए.
और यहाँ पहुँचने का बाद आपने बहुत गर्मजोशी से सर्किट हाउस में स्वागत किया, फिर यहाँ भूमि पूजन हुआ पंडित जी के द्वारा, और जिस प्रकार आप लोगों ने यहाँ स्वागत किया फिर से, और आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है पर्सनली इस प्रोजेक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बिल्डिंग के शुभ अवसर पर जैसे आप लोग सब आए हैं, मुझे लगता है कि ये एक सिंबॉलिक भी है। जब कोर्ट बिल्डिंग बनता है तो न्याय का प्रतीक होता है, तो इसके लिए सब लोग सरकार की ओर से, जुडिशरी की ओर से, बार की ओर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग ने जैसे यहाँ खास करके जितने लोग यहाँ आज बैठे हैं सब भावनगर के ही लोग हैं, तो यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, कुछ फिगर्स कि गुजरात का जुडिशरी का क्या या हालत है, और गुजरात सरकार की तरफ से क्या मदद दे चुका है, भारत सरकार की ओर से क्या क्या मदद दिए है। तो मैं ये पूरा आंकड़ा अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, लेकिन मोटा मोटी मुझे बहुत सेटिस्फाइड होता है जब जो पैसा दिया है गुजरात में, और जितना पैसा गुजरात को देता है वो बहुत अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल भी होता है। कई राज्य में ऐसा इशू होते हैं, पैसा देता है उसका इस्तेमाल ठीक से होता नहीं है, तो गुजरात में इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा से होता है। ये गुजरात के लोगों का स्वभाव ऐसा है, यहाँ आमतौर पर बहुत नॉन वायलेंट होता है, बहुत कोऑपरेटिव होता है, बहुत यहाँ के लोग शांत स्वभाव के लोग होते हैं, प्रो डेवलपमेंट होता है। तो मैं गुजरात के लोगों को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। मैं 2004 में यहाँ आनंद से आगे एक जगह है गांव, मैं वहाँ गए थे, पार्लियामेंट्री कमेटी था, तो यहाँ हमारे आदरणीय अभी प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे 2004 में, तो मैं गांव के तरफ गया तो वहाँ बड़ा बड़ा मशीन, बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगा के रखा हुआ है, बहुत बड़ा मशीन। वो मशीन जो है, जो ऑयल रिजर्व है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को डिस्कवरी के लिए वो मशीन अमेरिका से लाते हैं और वो ड्रिलिंग करते हैं, अंदर ड्रिलिंग करके फिर टेस्ट करता है मिट्टी को कि यहाँ तेल है कि नहीं। इतना बड़ा बड़ा मशीन है, और उसी मशीन के साइड में अपना वो घर भी होता है पूरा, वो जो टेम्पररी घर स्ट्रक्चर पूरा वो खींच के लेके आते हैं। इतना बड़ा बड़ा हम लोग, मैंने भी पहले बार देखा था गांव में। तो मैं जब वहाँ सामने में गया तो गांव के कुछ किसान वहाँ में काम कर रहे थे, आसपास में कई किसानों का काम चल रहा था। तो कोई भी किसान वो मशीन के तरफ देख नहीं रहा है। हमारे यहाँ में और भारत में बाकी जगह में अचानक इतना बड़ा मशीन आएगा तो पूरा टूट पड़ेगा, सब देखेगा कि ये क्या आ गया है हमारे यहाँ में, क्या मशीन है, किस लिए आया है, हमारे जगह में ये क्या करने आए हैं, हमारा ज़मीन, मेरा इलाका, मेरा गांव, वो तरह तरह से उसको रिएक्शन होता है। लेकिन गुजरात में मैंने देखा तो कोई परवाह भी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, तो मैंने गांव वाला को पूछा कि यहाँ आपके गांव के सामने में इतना मशीन काम कर रहा है, आप लोग को कोई इसके बारे में उत्सुकता नहीं है क्या, जानने का कोई इच्छा नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना खेती कर रहे हैं। तो मैंने फिर पूछा, तो आप ये नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, वो मशीन क्या करने आया है? उन्होंने बोला, 4-5 किसान थे, मुझे बोला हम लोग को पता नहीं है, नरेंद्र भाई ने क्या मशीन लाया होगा, जो भी लाया होगा गुजरात का फायदा के लिए लाया होगा, पूछताछ करना क्या जरूरत है। तो अपना नेता का प्रति विश्वास और लोगों का स्वभाव दोनों है। गुजरात को अच्छा नेतृत्व मिला
और गुजरात के लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इसलिए गुजरात आज बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। सरकार अच्छा होने से भी अगर जनता साथ नहीं देगा, एजिटेशन करते रहेगा, प्रोजेक्ट को हंगामा करेगा, प्रोजेक्ट को बंद करेगा, अननेसेसरी कोर्ट में PIL दाखिल करेगा और केस को स्टे ऑर्डर दे करके प्रोजेक्ट बंद कर देगा, ऐसा होते रहेगा तो देश विकास नहीं होगा। इसलिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आम जनता, हम सबको एकजुट होकर के काम करना होगा। जब भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हम लोग मिल करके इस तरह का कार्यक्रम करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आखिर तो देश को आगे ले जाने के लिए हम सब एक ही टीम का हिस्सा है। कभी कभी हमारा यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। जुडिशरी में जो जज बन जाते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो जज बन गया, ये पब्लिक से थोड़ा दूर रहो, ये MLA MP से थोड़ा दूर रहो। और लेजिस्लेचर में जो लोग हैं या एग्जीक्यूटिव में, वो भी सोचता है कि ये जुडिशरी वाला अपने दुनिया में रहता है, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। तो एक फासला होता है, एक दूरी, एक दूसरे के प्रति नजदीक आने का कोशिश नहीं करते। तो हमने सोचा कि ये जो परंपरा जहाँ जहाँ एक दूसरे के प्रति जो दूरी मेंटेन करता है, उसको सामने लाना जरूरी है। हम एक साथ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। जुडिशरी का जो परेशानियां हैं या सरकार का जो भी समस्या है, वो मिलकर के ठीक कर सकता है। अब मैं यहाँ गिनती करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जब इस देश का कानून मंत्री बना तो कई छोटे छोटे चीज़ों का भी हमने चेंजेस किया है। कई चीज़ें तो मैं प्रेस मीडिया को भी नहीं बताता हूँ, मैं अपने आप कर देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उनका सोचने का तरीका है मुझे मालूम है, और मुझे भी कई चीज़ों में उनका एडवाइस मिलते रहता है। कई सालों से उनके साथ काम किया तो मुझे मालूम है कि जब हम लोग को कोई पदभार, कोई जिम्मेदारी मिलता है तो समस्या को हल करने के लिए होता है, समस्या खड़ा करने के लिए नहीं होता है। तो मैं जुडिशरी के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक क्यों बने कि लॉ मिनिस्टर जुडिशरी का काम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी जो है लॉ मिनिस्टर से परेशानी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं, हाई कोर्ट में जितने भी चीफ जस्टिस हैं, सबसे मैं बात करता हूँ और मैं लगातार पूछते रहता हूँ, मैं आपका कोई परेशानी है तो लॉ मिनिस्टर होने के नाते मुझे बताइए, मैं आपका परेशानी दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाऊंगा और मैं करूंगा। ये कमिटमेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मेरे ऊपर में विश्वास देकर के कहा है कि जुडिशरी के साथ मधुर संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए जुडिशरी को भी मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि जुडिशरी ऑर्डर जो भी जजमेंट आता है कोर्ट से, उसको मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कोर्ट का जजमेंट फाइनल होता है। उसको अगर अपील करना है तो उसका लार्जर बेंच में कर सकता है, हायर कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, लेकिन मैं कोर्ट से बाहर उनके जजमेंट को मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आमतौर पर ये मानता हूँ कि ऐसा जुडिशियल ऑर्डर ना आए जिससे खामखा समाज में टेंशन पैदा हो, जिससे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रुक जाए। PIL के नाम में बहुत ऐसा लोग दिल्ली में भरे पड़े हैं, बिना मतलब के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से प्रोजेक्ट रुकने के लिए, विकास को रोकने के लिए वो कोर्ट को बेइस्तेमाल करता है। वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होता है, वो अपना प्राइवेट इंटरेस्ट होता है या कुछ और होता है, कुछ एक उनका अपना एक एजेंडा होता है कुछ लोग। मैं ये आज गुजरात में हूँ, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ या कश्मीर जाता हूँ या तमिलनाडु जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ को कहते रहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो देश का राजधानी दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट में सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को बराबर दर्जा मिलना चाहिए अपना केस दाखिल करने के लिए और केस लड़ने के लिए। जो
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रैक्टिस करता है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लड़ सकते? रजिस्ट्रेशन करके वो भी जाके लड़ना चाहिए। हाई कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लगना चाहिए। ये जो हम लोगों ने एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट करके रखा है आर्टिफिशियल, ये ठीक नहीं है। तो दिल्ली के अंदर में कई ऐसा वकील है जिसका एजेंडा ही देश का खिलाफ और प्रोजेक्ट रोकने के लिए ही वो एजेंडा चलाते रहते हैं। कई जैसे मीडिया में भी देखा है, ज्यादातर मीडिया तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मीडिया ऐसा होता है देश विरोधी चीजें लिखते रहता है और उसको बाहर में जाकर अवार्ड मिलता है। तो देश के बाहर में हमारा देश के खिलाफ कई लोग काम कर रहा है और वो अवार्ड देते हैं, बीच बीच में प्राइज देते रहता है, घोषणा करते रहता है, अलग अलग नाम से अवार्ड देते हैं। और वो ऐसा लोगों को छान के अवार्ड देते हैं जो भारत के अंदर बैठ करके भारत के विकास को रोकने के लिए जो आवाज उठाते रहते हैं, कोर्ट को माध्यम से अलग अलग प्रकार का केस दाखिल करता है, उनको अवार्ड देते हैं। ये सारे चीजें जो है हमारा नजर में है, इसलिए मैं बहुत ओपनली कहता हूँ। और ये जब हम आमने सामने होता है बात जो है क्लियर कट कहना चाहिए। पीछे में कुछ और कहेंगे, सामने में कुछ और कहेंगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग भी जो पार्लियामेंट में मैं देखा हूँ, आप लोग कभी कभी पार्लियामेंट में डिबेट सुना होगा, असेंबली में भी होता होगा, कई लोग जुडिशरी के ऊपर में कड़ी टिप्पणी करते हैं। और जुडिशरी के ऊपर में आजकल सोशल मीडिया में कई चीजें हैं, एंटी जुडिशरी आपको कमेंट्स देखने को मिलेंगे। और कोई कमेंट्स ऐसा होता है जो जज को बाय नेम जज को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे एक पत्र लिखा है, जो जज को गाली देते हैं और जुडिशरी को जो गाली देते हैं उसके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाना चाहिए। इस तरह का मेरे पास पत्र आया है। तो हम इसको बहुत बैलेंस नजर से हम देख रहे हैं। बैलेंस नजर से इसलिए देखना जरूरी है कि आजकल हम अगर कड़ा कदम उठाएगा तो कहेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर रहे हैं, या हम जांच बिठाएंगे तो बोलेंगे उसका प्राइवेसी में हम घुसे हैं, पुलिस एक्शन लेंगे तो पुलिस को अनाप शनाप बातें करते हैं। तो एक डेमोक्रेसी में बैलेंस कदम और बैलेंस स्टेप उठाना पड़ता है। तो हमने सोचा है कि इसमें हम आगे जाकर के इसका अध्ययन करेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो हम पार्लियामेंट में भी अपने एमपीओ को भी हम कहते हैं कि जुडिशरी को हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की तरफ से अटैक नहीं करना चाहिए, और जुडिशरी की ओर से भी ज़्यादा अपना सीमा क्रॉस करके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्रिटिसिज्म होता है। इसलिए एक बैलेंस फाइन लाइन एक तो खींच के रखा हुआ है, उस रेखा को हम लोग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो एक बैलेंस अप्रोच रहने से मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में हम अच्छा से अपना देश को आगे ले जा सकते हैं। तो आज भावनगर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन के सेरेमनी में मैं मानता हूं कि हम सब एक कमिटमेंट के साथ चलेंगे और भारत का जुडिशरी सिस्टम, हमारे न्यायपालिका को दुरुस्त करने में हम सब संगठित होकर के एक साथ काम करेंगे। A robust judiciary is extremely crucial for a vibrant democracy. Democracy cannot survive without independent and active judiciary. We have to ensure that judiciary is not only kept independent, but judiciary also has to be strengthened. We will strengthen judiciary. Our government is committed to ensure that judiciary is strengthened and kept independent. और आप लोगों ने देखा होगा 8 साल से ज़्यादा हो गई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जुडिशरी को एक आंच भी आए। हम लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से इसको समझते हैं और डेमोक्रेसी के नाम से हम लोग हमेशा ये मेंटेन करते हैं कि हम जो भी करेंगे जिम्मेदारी के साथ हम अपना काम करेंगे। तो
गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ज़्यादा कहने का आवश्यकता नहीं है। हम जितने जानते हैं उतना ही और उससे ज़्यादा गुजरात के लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जानते हैं। हम तो जब पार्टी के कार्यकर्ता थे तब से साथ में काम करके उनको मैंने देखा है। ये तो हम लोग का खुशनसीबी है कि ऐसा प्रधानमंत्री हम सबको मिला है और हम लोग को गाइड करते रहते हैं। और गुजरात के लिए तो सौभाग्य की बात है कि उन्होंने आधा से ज़्यादा टेन्योर तो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। मोदी जी ने अभी पिछले साल ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होते हैं 9,000 करोड़ लोअर जुडिशरी के लिए पैसा जो आवंटन किया है वो गुजरात को, अभी मेरा जॉइंट सेक्रेटरी राघवेंद्र जी ने मुझे बताया है, गुजरात के लिए जो भी पैसा मिलना चाहिए उसका अतिरिक्त भी यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं और उनके टीम और हमारे गुजरात के जो हमारे ऑनरेबल जजेस यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे आपका प्रपोजल आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, जो भी संभव मदद होगा गुजरात सरकार के साथ साथ केंद्र की ओर से भी पूरा आपको मदद मिलेगा। बहुत सारा इश्यूज है, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि 2014 से पहले हमारा देश का जो कोर्ट का हालत था कई गुना सुधर चुके हैं। मैं तो ताज्जुब होता हूँ, कोई रेंट हाउस में कोई कोर्ट चला रहे हैं, कोई कोर्ट रूम ऐसा है टॉयलेट नहीं है। मैंने किसी एक राज्य में गए थे तो मुझे बताया गया कि वहाँ लेडीज़ के लिए अलग टॉयलेट नहीं बना है, डिजिटल रूम नहीं है, स्मार्ट रूम नहीं है और कोर्ट रूम टूटा फूटा, छत भी टूटा हुआ है और वो बारिश गिरने से पानी लीक हो रहा है। बहुत बुरी हालत में है हमारे लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मैं देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए 2014 के बाद जितना हमने कोर्ट रूम्स दिए हैं, जजेस का रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाए हैं, आपका लेडीज़ के लिए अलग से हॉल बनाया है, टॉयलेट बनाया है, कई चीज़ें लोअर जुडिशरी को दुरुस्त करने के लिए हम बनाया है। इसको आगे हम और भी मजबूती से आपको इम्प्लीमेंटेशन में सहायता देंगे। बाकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने देखा है गुजरात इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द पीपल। गुजरात का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए आपके गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अरविंद कुमार जी के बारे में जो हमारा राजेंद्र जी मंत्री जी ने जिक्र किया है, तो हमने पूछा है, मैं अंदर में क्या हुआ वहाँ बाहर में तो हम नहीं बताना चाहते हैं। कई स्टेट के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस के बीच में जितना तालमेल होना चाहिए उसमें कमी नजर आता है और वहाँ बहस भी होता है जब चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होते हैं। CJI साहब हम सब रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस सब रहते हैं, लेकिन गुजरात का इतना अच्छा सबूत है कि गुजरात के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को वहाँ मीटिंग में मेरे सामने में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने में कहा कि गुजरात में गुजरात सरकार जुडिशरी को पूरा सपोर्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी बहुत कुछ दिया है और आगे भी तालमेल होकर के काम करते रहेंगे। तो ऐसा जो नज़ारा देखने को मिलता है कि इतना अच्छा तालमेल से काम कर रहा है, तो मुझे तो उसका संतुष्टि का भाव तो होना ही है। और मैं जब भी गुजरात आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बाकी लोगों को भी बताता हूँ, हमारा देश में अलग अलग तरीके से लोगों का जीने का अंदाज है। गुजराती लोगों का अपना एक अंदाज है, गुजराती लोगों का तो बहुत अलग स्वभाव है और गुजरात एक्सट्रीम वेस्ट है, इंडिया का सबसे एक्सट्रीम वेस्ट है गुजरात। और मैं जहाँ से आता हूँ वो एक्सट्रीम ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का भी सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट मेरा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, तो एक्सट्रीम वेस्ट। और हमारा अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट बंगाल को छोड़ के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है गुजराती लोग आते हैं। आप सोचिए, तो हमने बोला है कि गुजराती लोग घूमना फिरना बंद करेगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। तो गुजराती लोग इतना अच्छा व्यवहार है और आके टेंशन क्रिएट नहीं करते हैं गुजराती लोग, झगड़ा नहीं करता है, म्यूजिक जोर जोर से बजा के दूसरा को डिस्टर्ब नहीं करता है, जहाँ तहाँ बोतल घंटा फेंकता है, ऐसा भी नहीं करता है।
गुजराती टूरिस्ट लोग बहुत डिसिप्लिन है, वेल बिहेव्ड है। तो अमेरिका में जाने से भी इतना गुजराती लोग मिलता है, अफ्रीका जाने से भी, यूरोप में और एशिया में कहीं भी जाओ, और इंडिया के अंदर में गुजराती लोग कहीं भी जाता है तो वहाँ कंट्रीब्यूशन करता है, टेंशन पैदा नहीं करता है गुजराती लोग। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं इतना ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से आकर के वेस्टर्न मोस्ट आया हूँ, तो ये कनेक्शन जो है सिर्फ ये अभी का कनेक्शन नहीं है। आपको मालूम है रुक्मिणी श्री कृष्ण का, हमारे वहाँ जो बिस्मक नगर है, बिस्मक राजा, वहाँ जब आप लोग आएंगे तो देखेंगे वो बहुत पुराना वहाँ सिविलाइजेशन है। वहीं से रुक्मिणी को भगा करके श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ ले गए गुजरात में, द्वारका में। फिर यहाँ स्वयंवर किया हमारे यहाँ माधवपुर नगर, माधवपुर घेर, वो पोरबंदर से बाई रोड जाते हैं, 1 घंटे का ड्राइव होते हैं। तो मैं वहाँ स्वयंवर में भी गया, अटेंड किया। हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री और सारे कल्चरल टीम भी गए थे, हर साल होते रहते हैं। तो ये इतना पुराना कनेक्शन है, ये हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास, हमारा हिस्ट्री है। तो इस तरह का देश, इतना विशाल भारत देश, हम लोगों के बीच में इतना मधुर संबंध है, ये हमारे यूनिटी का प्रतीक है। तो जब मैं गुजरात आता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अलग प्रदेश में गया हूँ, मुझे तो लगता कि अपना ही प्रदेश में आया हूँ। हमारा देश का नेता भी आप लोगों ने दिया है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में पहले इतना डेवलपमेंट नहीं होते थे, मोदी जी का आने के बाद डेवलपमेंट इतना तेजी से आके बढ़ रहा है अरुणाचल और पूरा नॉर्थ ईस्ट का। ये सारे चीज़ जो है ना, मुझे यहाँ आकर के आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये कोर्ट बिल्डिंग का फाउंडेशन ले किया है आज, और मैं उम्मीद करता हूँ टाइम से ये बिल्डिंग बनेगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और इसी बिल्डिंग से भावनगर और आसपास के लोगों को न्याय मिलेगा। ये न्याय का बिल्डिंग है, यही से ही न्याय मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। भावनगर में आकर के मैं अपना भावना आपके सामने में मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि एक पुराना बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहे थे, आज नया कोर्ट का बिल्डिंग का आज शिलान्यास किया है। हमारे साथ में गुजरात प्रदेश का कानून मंत्री, हमारे लोकल सांसद, यहाँ के मेयर, एमएलए और कई हमारे जुडिशल ऑफिसर्स सब साथ में आए हैं। वकीलों का साथ मिलना हुआ, सबका साथ मिलकर के ये शुभ काम हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुजरात में ये भावनगर सिर्फ नहीं, पूरे गुजरात में जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में एवरेज में सबसे अच्छा स्टैंडर्ड के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मैं ये देख करके बहुत खुश हूँ और बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ। चुनौती जो पेंडिंग केसेस है, 4 करोड़ 80 लाख से ऊपर जो पेंडिंग केसेस हो गए हैं, उस पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके क्या क्या करना है, ये मेरा सबसे बड़ा चिंता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कोर्ट में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना जल्दी पेंडिंग केसेस को हम सेटल करेंगे उतना ही पेंडेंसी कम होगा, ये हमारा प्राथमिकता है। ये आम आदमी अरविंद केजरीवाल हर दिन देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुजरात में तो लोग समझदार हैं, उसको यहाँ तो आने नहीं देंगे। वो जो नाटक करते रहते हैं, गुजरात के लोग समझदार हैं। पंजाब के लोग अभी पछता रहे हैं, पंजाब में उन्होंने सपना बेचा और अभी इतना 1 साल नहीं हुआ, पंजाब के लोग बोल रहे हैं कि ये गलत आदमी को वोट दे दिया है, पछता रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने गड़बड़ करके दिल्ली के लोग भी अभी पछता रहे हैं। गुजरात में उसका चलेगा नहीं। और जो धर्म के नाम से जो आप बता रहे हैं, जो भी बोला गया है, वो उसको गलत तरीके से आम आदमी वाले ने उसको यूज़ किया, बोलने दिया, इसका खंडन करता हूँ। मैं खुद बौद्ध हूँ, बौद्ध हिंदू हम सब एक हैं। सिर्फ एक
अलग अलग थोड़ा सा उसका तौर तरीका में अलग है, बाकी सोच विचार हम लोग का सारा अस्तित्व एक है। तो ये इस तरह का बात करना, ये अरविंद केजरीवाल और उनके कंपनी ऐसे बात कर सकते हैं।